Hello everyone. So today we will start a new set of fresh biology questions in our MCQ set 5. So let's begin with our first question. Our first question is, what is the respiratory pigment in human body called as? So before learning the answer, first of all we should know what respiratory pigment actually is. A respiratory pigment is a molecule basically that increases the oxygen carrying capacity of the blood. So the right answer for our question among this is, let's see the options: chlorophyll, water, blood and hemoglobin. And our correct answer is hemoglobin. Okay, I think it is clear right now. Let's move on to the next question. Blood consists of what fluid medium? Okay, our options are lymph, platelets, plasma, all of this. So, our correct answer is plasma. Okay, in the components of blood, we know that plasma is the component of blood along with RBC, WBC as well as blood platelets. Okay, so what is the work of plasma basically? Plasma carries water, salts and enzymes. And the main role of plasma is to take nutrients, hormones and proteins to the parts of body that actually need it. Okay, so cells also put their waste products into the plasma, and then the plasma helps them remove this waste from the body. And the platelets, as you know, are one of the components of blood, and these cells are helpful in the clotting of blood. Okay, and lymph is an extracellular fluid, and this is light yellow in color. Okay, and it has WBCs which help to fight infections. Okay, so let's move on to the next question. Arteries and veins are connected by a network of extremely narrow tubes, and these tubes are called as capillaries. So arteries, veins and capillaries are the blood vessels. Here you can see the diagram of heart along with capillaries, veins and arteries. So you can see this veins, red colored tubes you can see, and here blue colored are the arteries, and these are connected here by a network of capillaries. Okay, and this is the heart. So your answer is capillaries. Let's see something about arteries and veins and capillaries. So let's see what arteries are. They carry blood away from the heart. Do remember, the arteries are blood vessels that carry blood away from the heart, and they always carry oxygenated blood. Okay, apart from pulmonary artery. Pulmonary artery is one of the exception among arteries which goes against the basic function of arteries, as it goes from the heart to the lungs. Okay, and these have thick muscular walls. Okay, veins have thin walls. Okay, in contrast to arteries, and arteries have small passageways for blood while veins have larger passageways for blood. Arteries contain blood under high pressure, okay, and veins contain blood under low pressure. Veins have valves to prevent blood flowing backwards. So as arteries carry blood away from the heart, similarly the veins are blood vessels that carry blood to the heart. Okay, and they always carry deoxygenated blood in contrast to arteries which always carry oxygenated blood. In arteries, you have pulmonary artery as an exception. Similarly, in veins, pulmonary vein is an exception which goes from lungs to the heart and it carries oxygenated blood. Okay, so this is about arteries, veins, and let's see about capillaries. Capillaries are found in muscles and lungs. These blood vessels are found in your muscles and lungs. These are microscopic, 1 cell thick. They have very low blood pressure, and here gaseous exchange takes place. Oxygen passes through the capillary wall and into the tissues, while carbon dioxide passes from tissues into the blood. Here you can see in the diagram, these are capillaries. Okay, and here you can see artery, and here you can see vein. Okay, so blood is traveling through the capillaries. You can see the arrow here. Okay, so like this, and the veins and arteries are connected by capillaries. Done with this question. Let's move on to the next question. The fourth question is, which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound? Okay, so I think in one of the questions we have this option also, and your correct answer is platelets. Okay, so platelets are the blood cells which help in the
ब्लड क्लॉटिंग. सपोज यू गेट एन इंजरी, इफ कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे से इफ योर ब्लड इज फ्लोइंग आउट, then their platelets will go and help the blood to clot, so that like if a pipe has a leakage and it is stopped by using certain methods, putting a tape, similarly platelet cells go to the place where an injury occurs and helps in clotting of the blood so that further flow of blood does not occur. Okay, let's move on to the next question. The fifth question is, the vein which brings clean blood from the lungs into the heart is known as. Okay, here it is asking about the vein which brings clean blood. Clean blood here means the oxygenated blood. Okay, from the lungs into the heart. And the correct answer to this is actually pulmonary vein. So here you can see the diagram of heart. Here you can see pulmonary arteries, pulmonary veins. Okay, it is divided into 4 chambers: left atrium, left ventricle, and here you can see right atrium and right ventricle. Here there is a septum in between. This you can see. This area is here so that the blood in the right side and left side of the blood of the heart does not mix, because one side is carrying the deoxygenated blood and the other side is carrying the oxygenated blood, so that this mixing of blood does not occur. Here we have a septum. Okay, so this is aorta. Okay, this is the largest artery in the body. Okay, so let's see more functions of the heart, so this thing becomes clear for you. For this question, let's see some more functions of the heart. So let's see about heart. Heart is a muscular organ and you remember it is the size of your fist. Okay, so आपकी जो मुट्ठी की size होती है, that is the size of your heart. Its function is to pump blood. So the heart pumps blood to various organs in your body. The right side pumps blood through the pulmonary circuit, while the left side pumps blood through the systemic circuit. You might be wondering what is pulmonary circuit and systematic circuit. We will see it further, okay, in the next slide. And about septum, I already told you it separates the right and left sides. ये left और right side का difference आप देख रहे हो. इधर left atrium है ऊपर, left ventricle नीचे, यहाँ right atrium ऊपर, right ventricle नीचे. तो इसके बीच में जो septum होता है, that separates the right and left sides. The left side has thicker walls because it needs to put the blood under high pressure than the right side. Let's move on to the next slide. एंड हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपका ब्लड है एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑकरिंग, सो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज एक्चुअली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, डबल. इट हैज़ 2 सेपरेट सर्किट्स एंड ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस. डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि हार्ट से ब्लड ट्वाइस होके गुजरता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो पूरे बॉडी से ट्रैवल करके आपके हार्ट के थ्रू लंग्स में जाता है. ठीक है, तो हार्ट से एक बार क्रॉस हो गया और लंग्स में गया, लंग्स में उसको वापस ऑक्सीजन मिला, फिर ऑक्सीजन वाला क्लीन ब्लड जो है वो वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से वो पूरे बॉडी में पंप किया जाता है. ठीक है, तो हार्ट से 2 बार क्रॉस हुआ, एक डीऑक्सीजनेटेड जाता है हार्ट से लंग्स तक, फिर लंग्स से वापस हार्ट के थ्रू पंप होके पूरे बॉडी में जाता है. तो 2 बार हार्ट को ट्वाइस उसमें से गुजरता है, इसलिए इसको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. मोस्टली वर्टिब्रेट्स में ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम ही होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, एज यू सॉ हियर, 2 सेपरेट सर्किट्स होते हैं. इसमें मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाके वो ऑक्सीजन लेता है, फिर वहाँ पर से हार्ट में आके पूरे बॉडी में जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी सर्किट होता है एक, जो हार्ट और लंग्स के बीच में काम करेगा, और एक सिस्टमैटिक सर्किट होता है सेकेंड वाला, जो हार्ट और अदर ऑर्गन्स के बीच में काम करेगा. कैसे काम करेगा देखते हैं. Okay, so you can see here, this is the heart. Center में you can see the heart. Here you can see the left lung, and here you can see the right lung, and here you can see the pulmonary arteries, and here you can see the pulmonary veins. Okay, so pulmonary circulation जो हम पढ़ रहे हैं takes place between the heart and the lungs. Okay, remember, heart और lungs के बीच में जो circulation process हो रहा है उसको हम लोग pulmonary circulation बोल रहे हैं. Second is systematic circulation. This happens between the हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स. हार्ट और बाकी ऑर्गन्स के बीच में जो होगा उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं. यहाँ पे अगेन आप सेंटर में हार्ट देख सकते हो. ओके, फिर यहाँ पे अपर बॉडी आपसे सिर से लेके हार्ट तक यहाँ पे, और फिर हार्ट से लेके यहाँ से लोअर बॉडी. तो इन सब के बीच में जो सर्कुलेशन प्रोसेस हो रहा है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं. और ये होता है कैसे? ठीक है, पल्मोनरी सर्किट क्या होता है? पल्मोनरी सर्किट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द लंग्स. द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड देन कैरीड बैक टू द हार्ट. इस सर्किट सिस्टम में वही होता है जो मैंने पहले बोला कि ब्लड जो है
आपके हार्ट से लंग्स को पहुंचाया जाता है, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर लंग्स में जाके जब आप रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो आपके लंग्स से जाके आपके ब्लड में जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो अगेन आपके हार्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज लंग्स में होता है, जो कि मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है लंग्स के थ्रू और आप रेस्पिरेशन करते हैं तब ऑक्सीजन अंदर आता है। फिर ब्लड में वो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। Unlike other arteries and veins, pulmonary artery carries deoxygenated blood and pulmonary veins carries oxygenated blood. ये हम लोग देख लिए arteries और veins का function, जिसमें pulmonary artery और pulmonary veins exception थे, ठीक है। And this was the question also about pulmonary vein, जो previous question भी था, वो oxygenated blood carry करता है, ठीक है। फिर सिस्टेमिक सर्किट सेकेंड वाला क्या होता है, द सिस्टेमिक सर्किट ट्रांसपोर्ट ब्लड अराउंड द बॉडी। अब ये ब्लड और बॉडी के बीच वाला है और पहला वाला पल्मोनरी सर्किट ब्लड और लंग्स के बीच था, ये सिस्टेमिक सर्किट ब्लड और बॉडी के बीच में है, ठीक है, मतलब हार्ट और बॉडी के बीच में है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी tissues and carries away deoxygenated blood containing carbon dioxide and other waste materials, ठीक है। तो it transports oxygen and nutrients to the body tissues, ये वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ब्लड लाता है, ठीक है, और आपके बॉडी में पहुंचाता है, पंप करता है हार्ट के थ्रू, और फिर इट कैरीज अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से ले जाके लंग्स में ले जाया जाता है, ठीक है, सिस्टेमिक सर्किट में। तो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल डायग्राम आई केप्ट हियर बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये डायग्राम देखते ही फिर इसके बाद आप इसको नहीं भूलोगे और आपको पूरा हार्ट का फंक्शन समझ में रहेगा कि ये काम करता कैसे है। देखो फर्स्ट प्रोसेस, ये फर्स्ट वाला डायग्राम फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द हेड, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, शरीर के बाकी हिस्सों से ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी, सिर के साइड से, नीचे बॉडी पार्ट से, यहाँ पे आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। फिर ये जो है बॉडी से आपके हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है, ये राइट एट्रियम है ये, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रहा है। फिर उसके बाद ब्लड पासेस फ्रॉम द राइट एट्रियम, ये सेकंड फंक्शन में, ब्लड पासेस फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल देन टू द लंग्स। फिर यहाँ से राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, ये येलो वाला एरो देखो। फिर यहाँ से ये देखो बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये येलो एरो देखो यहाँ पे, एंड दिस इज गोइंग टू द लंग्स, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पास हो रहा है पहले राइट एट्रियम से, फिर राइट वेंट्रिकल को, फिर वहाँ से निकल के लंग्स को। वो क्यों जा रहा है लंग्स में, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड प्रोसेस देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम, फिर वहाँ जाके ऑक्सीजनेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, ये येलो एरो देखो। फिर उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन, हियर ब्लड पासेज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पर से ऐसे गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये येलो एरो देखो। फिर यहाँ से बाहर निकल के ये ब्लड पासेज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा एंड इनटू द बॉडी, पूरे बॉडी में। फिर यहाँ से हार्ट से पंप कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ वो ऑक्सीजनेट होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आते हैं, पास होके एओर्टा से वो पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली हार्ट में ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम्स मैंने इसीलिए इसमें इतने यूज़ किए हैं ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए, विजुअलाइज करोगे तो अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, और इसमें क्या क्या ऑर्गन्स है आपको मैं बताती हूँ अभी। तो इसमें पूछे एक्सक्रीटरी यूनिट को क्या बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको बाहर निकालना, उस फंक्शन को बेसिकली एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। यू कैन सी अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारा चीज़ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। ये सब किडनी भी देख रहे हो, ये पाइप्स लंबे लंबे देख रहे हो, ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होके रहता है जब तक वो यूरेथ्रा से बाहर पास नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें पूछा है कि
एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं किडनी के अंदर रहते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स, दैट इज द excretory unit of human excretory system. Okay, so let's move on to the next question. ठीक है, ये क्वेश्चन है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर. अच्छा, यहाँ पे पूछा है किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर को कौन सा ट्यूब कनेक्ट करते हैं. तो अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर, दैट्स व्हाई आई कीप डायग्राम्स एंड यू शुड रिमेंबर दिस बेसिक डायग्राम्स. डायग्राम्स आर कोर ऑफ बायोलॉजी, यू शुड नो दिस बाय डिफॉल्ट. ओके, तो ये इसका आंसर है आपका यूरेटर. ठीक है, यहाँ किडनी देख लो, दोनों किडनी और यूरेटर, ये लंबी पाइप्स जो है और ये दिस ट्यूब्स, फिर ये कनेक्ट हो रही है आपके यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेटर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of nephron allows the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries? Okay, तो फिर ये नेफ्रॉन का डायग्राम है. जो क्वेश्चन आया था, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज योर नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के अंदर ऐसा होता है. ठीक है, तो इसमें पूछा है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मैं बेसिक आइडिया देती हूँ कि हाउ लाइक यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट टू द किडनीज बाय रीनल आर्टरीज विच यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. यहाँ पे रीनल आर्टरी दिख रही है आपको, ये डायग्राम ये देखो. ठीक है, फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हो रीनल आर्टरी है. ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल्स जो आपकी बॉडी में निकलते हैं वो किडनीज तक या रीनल आर्टरीज ही लाती है. ठीक है, किडनी तक लाती है. फिर ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सूल. अब इस डायग्राम को देखो, अब यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम, ये बोमेंस कैप्सूल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर किया जाता है ब्लड कैपिलरीज से. ठीक है, तो ये बोमेन कैप्सूल आपके नेफ्रॉन में रहता है, यहाँ पे ये चीज़ होती है. फिर जो फिल्ट्रेट जो होता है वो पास करता है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से. ये जो आप ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन देख रहे हो डायग्राम में, येलो पाइप स्ट्रक्चर, यहाँ से ये पास होता है. उसके बाद इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस जो क्वेश्चन में पूछा है ना, उसका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का, सॉल्ट का, वाटर का. ठीक है, बाय द ब्लड कैपिलरीज. तो आंसर आपका यही हो गया, ट्यूब्यूल. इसी का ये फंक्शन होता है फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक है, वो ड्रेन कर दिया जाता है आपके किडनी के अंदर. फिर जो वो आपका यूरिन फॉर्म होता है येलोइश लिक्विड, वो यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है ये यूरिनरी ब्लैडर में. फिर उसके बाद यूरेथ्रा से जब आप को बाहर फेंकना है, यू कैन थ्रो इट आउट, राइट. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस वेस्ट इज ओनली थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन through urethra and your urinary opening. So this is the answer here. I hope this excretory system is a bit clear for you. Let's move on to the next question. ठीक है, यहाँ पे देखो, the procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called as. अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड आपके लिए करना ज़रूरी है. यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हो. सो आंसर मैं बता देती हूँ. वैसे ये डायलिसिस है. ठीक है, ये डायग्राम ही डायलिसिस का है. क्या होता है ना, किडनीज आर ऑल्सो वेरी वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल. तो कई बार क्या होता है कि किडनी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन और इंजरी, कुछ वजह से अगर आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो फिर किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो फिर उसको तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने के लिए काम करना है ना. अगर वो खराब हो गया तो दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड. सो ये इतना डेंजरस हो सकता है दैट द पर्सन में डाई ऑल्सो, दिस में इवन लीड टू डेथ. तो फिर दैट्स वाई इन केस ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी फेल हो सकती है, तो वैसे में आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम इन द राइट हैंड साइड. तो एक आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होता है ताकि आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जा सके फ्रॉम योर ब्लड थ्रू डायलिसिस. तो इसमें ऐसे ट्यूब्स रहते हैं, सेमी परमिएबल लाइनिंग रहती है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्यूबिंग मेड ऑफ ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर ऐसे आपके ब्लड को क्लीन कर दिया जाता है. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस. Next and the last question for today is, which of the following statements is not correct? Again, as I always said, you have to study the question twice. 2 बार question पढ़ना ज़रूरी है for to know what it is asking. Okay, यहाँ पे पूछ रहा है which is not correct. Okay, so
First option is deoxygenated blood is poured into the right atrium of the heart. If you followed me well through the session, you would have understood कि blood में पूरा functioning कैसे हो रहा है. तो उससे आपको ये clear हो गया होगा कि deoxygenated blood right atrium से जाता है. वो 4 डायग्राम वाले दिखाया था, उसमें भी मैंने शो किया था कि कैसे वो पास हो रहा है. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है. Second, excretory units of flatworms are flame cells. Yeah, this is also true. Third statement देखते हैं. Human kidney has about 1 million nephridia. Okay. So actually human kidney जो मैंने बताया excretory system में, उसमें nephrons होते हैं. nephridia किस में होता है? earthworms में होता है. So this is the wrong option. And यहाँ पे पूछा था कौन सा correct नहीं है, तो option C is not correct. So this is the answer. चलो चौथा ऑप्शन भी वैसे देखना चाहिए. ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज. या दिस इज डेफिनेटली राइट. ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर प्रेजेंट इन योर xylem and these are definitely non-living conducting tissues. So here we are done with 10 questions for today. I hope this is very clear. If you have any doubts, you can ask it in the comment section, and if you have any feedback too, you can tell me in the comments. Okay, so that's it for today guys. Thank you very much.